تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی بحیثیت امت مسلمہ ہم سب کو اپنا کردار امت کی بہتری کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے، کرپشن میں ڈوبے معاشرے کے سدھار کے لیے ادا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس سے اکثر غافل رہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ معذرت کے ساتھ علماء سو جو کہ امت کو بانٹ کر آپس میں لڑا کر اپنی دال روٹی اور دکان چلا رہے ہیں، ان کی منافقت کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. حالانکہ الحمدللہ امت کا دامن مخلص اور قوم و ملت کو جوڑنے والے علماء حق سے ابھی خالی نہیں ہوا ہے، جن کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے. تو برادر قیصر وزین گروپ کے حوالے اب اسٹیج ڈرامہ حاضر ہو پیش کرنے کے لیے. اور سامنے بیٹھے ہمارے معزز مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سال اپنے اینول ایونٹ میں ہم ڈرامہ پیش کرتے ہیں حاضر ہو. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم کسی کی تہذیب کریں یا کسی کی بھی انسلٹ کریں. ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کرداروں کے ذریعہ اپنے کرداروں کے ذریعہ سوسائٹی کو اویئر کریں ان ٹاپکس کے ذریعہ کہ لوگ جن سے اویئر نہیں ہیں. سب سے پہلے جو کردار ہے وہ ہے عالم کا. میں اور کسی بھی کردار کا ڈسکلیمر نہیں دوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کردار کا ڈسکلیمر ضرور دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہیں بدگمان نہ ہو جائیں. دیکھیں، علماء کے دو طبقے ہیں. ایک علماء حق جن کی محنتوں کی وجہ سے آج اسلام ہمارے تک پہنچا ہے. دوسرے علماء سو جو صرف مسجد اور مدرسوں تک محدود ہو کے اور عوام سے اپنے آپ کو کاٹ کے جو رابطہ عوام کے ساتھ ان کا ہونا چاہیے تھا، اصلاحی رابطہ، وہ نہیں ہو پا رہا ہے، جس کے بنا پہ آج ہم علماء کو بھی اپنے کٹگرے میں حاضر کریں گے. یہ طبقہ نمازوں میں ہماری امامت کرتی ہے، ہمارے دینی درسگاہوں کو چلاتے ہیں، قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ہمارے نکاح اور جنازہ پڑھاتے ہیں. میری مراد علماء کرام سے ہے. میں بہت احترام اور تعظیم کے ساتھ بلانا چاہتا ہوں علماء سو حاضر ہو. علماء سور حاضر ہو. خیرات، عطیات، زکوٰۃ، صدقات جو ہے سب لے کر آؤ. گھر میں کوئی نہیں ہے. ارے مولانا صاحب آپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب تار پھنس گئی. مولانا صاحب آپ کو ہم بلائے یہاں سوالات کا سامنا کرنے کے لیے، آپ یہاں بھی چندہ بندہ مانگنے لگ گئے ہیں. دیکھو کیسے تم ہمارا مرید ہے، تمہیں ہم کو بلایا تو ہم سوچے کہ چندہ کا چندہ بھی ہو جائے، سوال کا سوال بھی ہو جائے. ہاں صاحب آپ سدھریے گا نہیں، اپنا والا کام ضرور کر کے رہیے گا. اچھا مولانا صاحب، میرا کام جو بولے تو وہ ہو گیا. ارے وہ کام بہت مشکل ہے. ہیں؟ ہاں، وہ بہت بڑا جادو کیا ہوا ہے، بہت خطرناک قسم کا. جادو؟ ہاں، شترنگا مرغا لانا، ہیں؟ خود کھانا اور ہم کو بھی کھلانا. ارے مولانا صاحب کہاں جادو وادو بول رہے ہیں؟ سترنگا مرغا کہاں سے لائیں گے؟ LGBT والا سدھار مانگ کے لائیں گا؟ ارے مولانا صاحب ہم تو اپنا دوست کا نانی کا دعائیں مغفرت کے لیے بولے تھے، وہ کام ہم بولے وہ ہو گیا. وہاں ان کا مغفرت ہم کروا دیے. آپ ہر چیز میں آپ لوگ مطلب. اچھا مولانا صاحب، ہم آپ کی اجازت شروع کریں سوال کا سلسلہ. ہاں بالکل. دیکھیں مولانا صاحب، ہم تو آپ کا مرید ہیں، مگر یہ عوام یہ لوگ بہت بدلوگ ہیں. یہ لوگ ہر بات پہ سچ بولے گا، غلط بات پہ آواز اٹھائے گا، اور یہاں تک کہ آپ کو بھی لوگ نہیں چھوڑا. آپ پہ بھی لوگ کئی سارا الزام لگا دیا ہے. اچھا، تو آپ ان لوگ کا الزام کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ارے کیسا بات کرو کیسے. یہ جو عوام ہے انہی لوگوں کے خیرات سے، عطیات سے، زکوٰۃ سے. مولانا صاحب احتیاط سے،
ऐसा ना हो कि आपके चंदा पे फर्क पड़ जाए, मतलब नहीं है। इन्हीं लोगों की वजह से हमारे मस्जिद और मदरसा चलता है। सुनो, हाँ, तुम हमारा मुरीद है ना, हाँ। तो फिर सब बात क्या बोलता है? अरे मौलाना साहब, वकील न बने, थोड़ा समझिए बात को। अच्छा मौलाना साहब, आप लोग जो है उलमा किराम की अहमियत और फजीलत पे तो बहुत सारा बात किए हैं आवाम के सामने। हम चाहेंगे कि आप आज आवाम को उलमा किराम की जिम्मेदारियों से भी आगाह करें। उलमा इकराम के बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे मस्जिद में लोगों का नाम इमामत करवाना, मदरसों में कुरान और हदीस पढ़ाना और निकाह व जनाजा पढ़ाना। निकाह और जनाजा एक साथ? अरे कैसा रूप चीज नहीं है कि निकाह पढ़ते ही नहीं। हाँ। निकाह और जनाजा का मतलब, निकाह का मतलब निकाह जब दो लोगों की शादी होती है तो निकाह भी हम ही लोग पढ़ाते हैं, और जब मैयत होती है तो जनाजा भी। मौलवी साहब, तुम तो टेंशन मत लो, तुम्हारा 4 शादी होगा, हम ही निकाह पढ़ाएंगे। अरे मौलाना साहब, इसीलिए तो आपका मुरीद है। आँख भी खराब होता है। मौलाना साहब, मगर जितने काम आपने गिनवाए हैं, ये तो आपका फर्ज था कि आप हर मुसलमान की उस नहज पे तरबियत करते कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की थी, कि उनमें से हर एक शख्स इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाने का अहल होता था। जैसे कि एक मुसलमान, आप मुसलमानों की तरबियत इस तरह से करते कि हर मुसलमान नमाज में इमामत करने का अहल होता, अपनी बेटी का निकाह पढ़ाने का अहल होता और अपने वालिद का जनाजा पढ़ाने का अहल होता। खैर इमाम साहब, हमको लगता है कि आप एक पॉइंट भूल गए। क्या चीज? अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाली जिम्मेदारी। देखो कैसे, ये हम उलमा ही हैं जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। दुनिया में जितने नबी इस दुनिया में मबूस किए गए, तशरीफ लाए, सबने यही काम किया, और अब कोई नबी नहीं आने वाला है। तो ये जिम्मेदारी उम्मत को बतौर तोहफा दे दी गई है कि तुम लोगों को बुराई से रोको और भलाई की तरफ बुलाओ, और यही काम हम कर रहे हैं। तो ये जरा बताएंगे कि आप लोग ये काम कैसे कर रहे हैं? इधर सुनो। अरे यार, तुम जुमा में आते हो? हाँ, हर जुमा में आते, जुमा ही को तो आते हैं। जुमा में कब आते हो? जब अजान दी जाती है तब, या नमाज खड़ी होती है तब? भाई समझ ले, काहे बेइज्जत करना चाह रहे हैं आपके सामने? तो बोलिए ना अपना जवाब। मेंबर पे जो खुतबा हम लोग देते हैं, तकरीर करते हैं, वो क्या है? इसके अलावा साल में 2-4 ठुमिलात जो जलसा करते हैं, वो क्या है? अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ही तो है। तो क्या जुम्मा के दिन 1 घंटे की तकरीर से और साल में 2 या 3 जलसों और मिलाद करने से अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अदा हो जाता है? जबकि आज फितने हमारे ऊपर ऐसे बरस रहे हैं जैसे बारिश की बूंदें हों, और ऐसे फितनों के दौर में आपने बाहर निकलकर जमीनी सतह पे लोगों की इस्लाह करने के बजाय हुजरे में गोशा नशीन होना बेहतर समझा। उम्मत को उस दज्जाली फितने के हवाले छोड़ के आप मुतमईन कैसे रह सकते हैं? और नहीं अनिल मुनकर का तो छोड़ें, आपके अम्र बिल मारूफ का भी हाल हमको पता है कि जब एक बच्चा अगर 7 दिन आपके पीछे नमाज पढ़ने आता है और 8वें दिन गायब हो जाता है, तो आपके माथे पे बल तक नहीं आता, आप कोई खोज खबर नहीं लेते कि वो बच्चा नमाज पढ़ने क्यों नहीं आया। देखो, हम भी कोई इतना फ्री नहीं बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर भी 200 बच्चों की जिम्मेदारी है। आपके 200 बच्चे हैं? अरे मेरे नहीं, मदरसे के। अच्छा। हाँ, हम मदरसे लोग तो इस चीज में बदनाम है, इसलिए 200 बच्चों की जिम्मेदारी है, जिनका खाना पीना, रहना सहना, दवाइयाँ सब हम लोगों को देखनी पड़ती है। और रही बात आप लोगों की, तो आप तो एक में परेशान है जनाब, एक की तालीम तरबियत आपसे ठीक से होती नहीं है, और आप हमें समझाने आए हैं। सोचे किस मुश्किलात के साथ हम 200 बच्चों को देख रहे हैं। सोचे जरा, मैंने तो सुना था कि एक मुसलमान पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी उठाने की अहलियत के साथ पैदा होता है, और आप 200 बच्चों में ही परेशान हैं। और रही मदरसे के बच्चों की, तो माजरत के साथ आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज के वक्त में अगर सबसे ज्यादा एहसास कमतरी किसी तबके में पाई जाती है तो वो मदरसे के बच्चे हैं। और हो भी क्यों ना, आप लोगों ने उन बच्चों की ऐसी तस्वीर समाज के सामने पेश की होती है कि ये बेचारे गरीब, मिस्कीन, यतीम बच्चे हैं, और आवाम से अपील भी करते हैं
कि उनकी मदद सदका ज़कात खैरात से करें। वाह जनाब वाह, जिनको आगे जाके न सिर्फ मस्जिद की बल्कि कौमों की इमामत करनी थी, आप लोगों ने पहले ही उन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया। यही वजह है कि आप मदरसों में जल्दी किसी बड़े घराने के बच्चों को ना देखेंगे। वो हमेशा दाखिला लेंगे तो कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूल में लेंगे, और मदरसा में दाखिला कौन से बच्चे लेते हैं? जो या तो इंतहाई गरीब होते हैं या अपने घर के सबसे नालायक और शरीफ बच्चे होते हैं। ये सरासर गलत इल्जाम है हम पर। हम बच्चों को आलिम बना रहे हैं और आलिमों को हम वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिसीन समझते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप बच्चों को वरसतुल अंबिया समझते हैं, तो ये भी बता दें कि अंबिया के क्या मिशन थे जो वो दुनिया में लेके आए। अंबिया इकराम का सिर्फ एक मिशन था, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को, तौहीद की दावत को दुनिया के चप्पे चप्पे और गोशे गोशे में किस तरह से फैला दिया जाए। तो आज अंबिया के वो वारिस कहाँ हैं जो दुश्मनान इस्लाम की जानिब से शरीयत पे, मुसलमानों की तौहीद पे हमले किए जा रहे हैं। आज मुसलमान पूरी दुनिया में बहुत तेजी से मुर्तद और मुल्हद हो रहे हैं, स्पेशली उम्मत की नौजवान बहनें जो गैरों के लव ट्रैप का शिकार हो रही हैं। लव ट्रैप ये क्या है? अरे मौलवी साहब, हुजरत से बाहर निकलिए तब न समझ में आएगा कि लव ट्रैप क्या है। आज मुसलमान बहनें गैरों की मोहब्बत के जाल में फंस रही हैं, जो एक सोची समझी साजिश है, और उन फंस के उनसे निकाह कर रही हैं और तौहीद को छोड़ के शिर्क और कुफ्र को खुशी खुशी कबूल कर रही हैं। जिस तौहीद की दावत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में चोटें खाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद में तकलीफें बर्दाश्त की, आज उस तौहीद को भी हमसे अलग किया जा रहा है। गैरों को तो पता है कि अगर एक मर्द बिगड़ता है तो सिर्फ एक मर्द बिगड़ता है, अगर एक औरत बिगड़ती है तो पूरी नस्ल गुमराह और बिगाड़ पैदा हो जाता है। मगर जब एक औरत इतना कुछ होने के बावजूद आपके माथे पे कोई शिकन आई, कभी नींद खराब हुई, कभी बेचैनी में नींद खुली नहीं, तो खाली जबानी जमा खर्च से काम चलने वाला नहीं। देखो क्या सर, देखिए वकील साहब, ये हमारी मजबूरी है। इस मजबूरी को आप इस शेर के जरिए समझ सकते हैं कि उसने कहा, सुन जबान मेरी काट कर, अब तुझे इजाजत है हाल दिल सुनाने की। इसका मतलब क्या है इमाम साहब? इसका मतलब यह है कि आज हम लोग जो मदरसे चला रहे हैं या जो मस्जिद चला रहे हैं, उसकी कमेटी के मेंबरान जो फैसले लेते हैं, वही फैसला हर पे आखिर होता है, और इसके जिम्मेदार आप हैं, ये लोग हैं। क्यों? इन लोगों ने क्या किया? मस्जिद की कमेटी की तश्कील जब देनी चाहिए तो हमें देखना चाहिए कि कौन शख्स तकवाशुआर है, किसके अंदर कौन नमाजी है, परहेजगार है। मगर जब हम तश्कील दे रहे होते हैं तो इस चीज को देखते हैं कि हमारे इलाके में जो है वो असर रसूख रखने वाला कौन है, कौन सा शख्स है जो किसी गवर्नमेंट सर्विस में ऊंचे ओहदे पर फायज है, कौन शख्स है जो मोहल्ले का लीडर है। हम ऐसे लोगों को अगर कमेटी में लाएंगे तो नतीजा यही होगा। चले करप्ट लोग, बुरे लोग कमेटी में आए जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मगर आप तो आलिम थे, आपको तो जबान अपनी खोलनी चाहिए थी हक के लिए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? देखें, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे मजबूरी है, मगर मजबूरी ऐसी कि पेट की मजबूरी। देखिए इमाम साहब, इस उम्मत को इमाम जो चाहिए वो सरदार चाहिए, न कि नौकर। हमें इमाम वो चाहिए जो कि हमारा सरदार हो। आपने इमामत तो की मगर क़यादत छोड़ दी, और जब क़यादत छोड़ी तो इमामत भी नौकरी हो गई। एक इमाम सिर्फ नमाज का इमाम नहीं होता, बल्कि वो कौम और मिल्लत का कायद होता है। ज़रूरत है आज इनकलाब की, और इनकलाब इमाम साहब आता है फर्द से। अफराद तैयार करते हैं कायदीन, और कायद मिल्लत में से निकल के आते हैं। आप सही कह रहे हैं, मगर हमारी क्या सही कह रहे हैं? फिर से सवाल करो, हमारे सवाल में गड़बड़ी है। सुन हम आपके तरफ हैं। ये कैसा मेरी तरफ है? मतलब उंगली उन लोग की तरफ है, दिल आपके तरफ है। तुम्हारा मेरी तरफ हमको समझ में आ रहा है, तो किस तरफ से? तो आप जो मैंने कहा, क्या वो मेरी बात सही है कि नहीं है? देखें, एक इमाम, वो नहीं देख रहे थे, देख ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हाँ। हमारी तनख्वाह भी देखें, और हमारी तनख्वाह एक मिल के मजदूर से भी कम है। और आप इस दौर में महंगाई को देखें, महंगाई किस कदर आसमान को छूती जा रही है।
اور लोगों की जब बात आती है तनकीद करने की तो तनकीदें तो करते हैं मगर हमारी इस हाल को कोई नहीं देखता। आखिर हमारी भी फैमिलीज है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम जाए तो जाए कहाँ, अब करे तो करे क्या। वाह मोदी जी वाह। उसकी वजह भी यह है कि आपने इमामत को प्रोफेशन बना लिया। आप लोग भी वही कर रहे हैं जो असरी तालीम हासिल करने वाले करते हैं। वो तालीम सिर्फ इसलिए हासिल करते हैं कि उसके जरिए कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। हालांकि मकसद तालीम का मकसद हरगिज नौकरी का हुसूल नहीं होता। सहाबा को देखें और बताएं कि किसी ने दीन के इल्म और उसके लिए दिन का इल्म इसलिए हासिल किया हो कि मस्जिद और मदरसों की नौकरी मिल जाए उसको, और उन कामों को बतौर पेशा अख्तियार कर सके। नहीं, तमाम अंबिया ने बकरियां चराई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तिजारत भी की है। सहाबा किराम खेती और मजदूरी किया करते थे और वो भी तिजारत किया करते थे। किसी ने इमामत को प्रोफेशन नहीं बनाया। मैं आज भी बड़े बड़े उलमा को जानता हूँ जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, क्योंकि उन्होंने इमामत को प्रोफेशन नहीं बनाया और वो अपने खर्चे पे कई फलाही इदारे चलाते हैं। चुप क्या है? सवाल कर लिए। हाँ, सवाल कर लिए। है, चुप हो गए तो अगला इल्जाम आपके ऊपर ये है कि कुछ नौजवान ऐसे हैं जो दीन की खिदमत करना चाहते हैं और करते भी हैं। अल्लाह ने उनको जो सलाहियत दी है वो उसे दीन की खिदमत में लगाते हैं और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। आप लोगों को चाहिए था कि उन लोगों को अप्रिशिएट करते, उनकी रहनुमाई करते, लेकिन आप लोग उन पर ज़बान दराज करते हो, फतवा लगाते हो और उनके हौसले को पस्त करते हो। ऐसा क्यों? देखें, ये जो लोग हैं उनके खुलूस से हमें कोई इनकार नहीं है, मगर ये कोई मुस्तनद आलिम भी नहीं है। इनमें से बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे एडवोकेट हैं और बहुत सारे ब्रदर हैं। इनके अंदर जो अपनी अपनी फील्ड को छोड़कर आए हैं, आधी अधूरी तालीम हासिल करके उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। और मैं आपको कहूं कि इनके अंदर फिक़ही मसाइल का इल्म नहीं है। अच्छा, अवाम उस बात को बखूबी समझती है इमाम साहब। हर इंसान के अपने हदूद होते हैं, अवाम समझती है, वो उससे बाहर निकलना भी नहीं चाहती। और फिक़ही मसाइल के लिए हमारे रहनुमा उलमा ही होते हैं। आम मुसलमान को उन मसाइल में जाना भी नहीं चाहिए, ये उनकी फील्ड नहीं है। लेकिन आप बताएं, क्या अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए कुछ सनद का होना जरूरी है? ऐसा लगता है क्या सर, तुम हमारा मुरीद है ना? अब लग रहा कि हमको मुरीद ऐसा लगता है कि तुम जो है उलमा से बदजन हो गए हो और इन ब्रदर्स के फितने में तुम भी मुलविस हो गए हो और इनका असर बहुत ज्यादा हुआ है तुम्हारे ऊपर। नहीं इमाम साहब, क्या हर मुसलमान की जिम्मेदारी कुछ लोग है अपने हदूद से बाहर निकल के, मैं समझता हूँ कि अपने मसाइल पे जो कि एक बड़ी गलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने हदूद में रहकर आपको रहनुमा समझा और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आज जो नौजवान 10 या 15 साल पहले उलमा को सुनते थे और उनको फॉलो करते थे, वो आज आप लोगों से बेजार क्यों हैं और दूसरे लोग जैसे यूथ क्लब वाले को सुनते हैं और फॉलो कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि तुम बहुत जान गए हो, तो तुम ही बतला दो कि क्यों ऐसा है। क्योंकि यूथ क्लब और ऐसी तंजीमें यूथ के साइकोलॉजी और मॉडर्न डे चैलेंजेस को समझते हैं और बखूबी वाकिफ भी हैं, जिसकी वजह से यूथ अपने आप को उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन उसके बरस आप लोगों ने खुद को मस्जिद और मदरसों की चार दीवारी में कैद कर रखा है। न आप उन हदूद से बाहर निकल कर यूथ के मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं और न उन्हें खुद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने आप को मस्जिद तक महदूद नहीं रखा, जमीनी सतह पर नौजवानों पर मेहनत की, उनसे इनके मसाइल को हल किया। और आपसे आखिरी सवाल मेरा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो फलाह पा जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम अरब और अजम के हुक्मरान बन जाओगे और तुम ही गालिब रहोगे। तो ऐसा क्या हुआ कि आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं फिर भी मगलूब हुए जा रहे हैं? आज पूरी दुनिया में हम परेशान हैं, लोग हमें दबा रहे हैं, हमें सता रहे हैं, ना हमारी जानें ना हमारी इज्जतें महफूज हैं, ना हमारे घर बार महफूज है, ना हमारी मस्जिदें। देखो, दरअसल ये सब यहूद और नसारा कुफ्फार और मुशरिकीन की साजिशें हैं और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। मगर आज उम्मत मुसलमान के बहनों और भाइयों की रविश को देख ले, ये किस तरफ अगियार के तरीकों को, गैर मुशरिकीन के तरीकों को अपनाए हुए हैं। अल्लाह ताला खफा है हमसे। मौलाना साहब,
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی جس کا مفہوم میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ تم پہ اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی, کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, تم اس وقت اس طرح ہوگے جیسے سمندر میں جھاگ, سمندر کے جھاگ, اتنی زیادہ تعداد ہوگی. تو پھر صحابہ نے پوچھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایسا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جسے وہن کہتے ہیں. تمہیں پتا ہے وہن کیا ہے؟ رسول اللہ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر سمجھتے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہن یہ ہے حب الدنیا اور کراہیت الموت. صحابہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ دین کی اشاعت کے لیے ہمارا غالب ہونا ضروری ہے. ہم مغلوب ہو کے اقامت دین کا کام انجام نہیں دے سکتے, اور یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اللہ کے نظام کو زمین پر نافذ کریں. ہم نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا, ہم نے لا الہ الا اللہ کی محنت کو چھوڑ دی, جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے. شکریہ. آپ ججمنٹ. سب سے پہلے میں وکیل صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ مولانا صاحب کو لو ٹریپ کی بات جو ہے انہیں سمجھا دیں سائڈ میں. عدالت نے دونوں فریقوں کی بات سنی اور عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ایسے علماء کو فتویٰ دینے کا حق نہیں جو گوشہ نشین, عوام سے لا تعلق اور حالات حاضرہ اور ضروریات زمانہ سے ناواقف ہو. لہذا ہر بصیرت رکھنے والے عالم پر لازم ہے کہ وہ حالات حاضرہ سے بخوبی ہو تاکہ انسانی زندگی سے ہم آہنگ فتوے دے سکے, کیونکہ ایک عالم کا کام صرف رائے لکھنا اور ہوا میں تیر چلانا نہیں ہے. مسجد مسلمانوں کا قلعہ ہوتا ہے اور امام ان کا قائد. مسلمانوں کی ضروریات اور پریشانیوں کا حل مسجدوں سے ملنا چاہیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی پورے مسلمانوں کا سینٹر اور قلعہ تھا, وہیں سے پورے دنیا کے مسائل حل کیے جاتے تھے. عدالت یہ چاہتی ہے کہ ہر مسجد کا اپنا ایک بیت المال ہو جسے غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جا سکے. صاحب اب آپ جا سکتے. علامہ اقبال کا قول ہے مسلمانوں زمانہ آگے جا رہا ہے جانے دو, تم اپنے اخلاق, اپنے معاملات, اپنے کردار 1400 سال پہلے والا کر لو, زمانہ تمہارے پیچھے آئے گا. تم کلمہ پڑھتے پڑھتے اخلاق تک پہنچو, لوگ تمہارا اخلاق دیکھتے دیکھتے کلمہ تک پہنچ جائیں گے. اب عوام کی عدالت میں جو سوالات کا سامنا کریں گے وہ ہے کامن مسلم, عام مسلم حاضر ہو. کامن مسلم حاضر ہو. السلام علیکم ایوری ون, کیفا حال؟ اس سے پہلے کہ میں اپنے سوالات آپ کے سامنے رکھوں, میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن عوام سے آپ کا ہو جائے تاکہ یہ سمجھ آ سکے کہ آپ کتنے پانی میں. کیا اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں امام ہوں. امام؟ ماشاء اللہ. ابھی میں کوئی مسجد کا امام تھوڑی ہوں, میرا نام امام ہے. استغفر اللہ. آپ کے والد کا نام؟ حافظ. کتنے پاروں کا؟ ارے بابا, میرا ابو کا نام حافظ ہے, وہ حافظ قرآن نہیں ہے. بھائی آپ لوگوں نے تو اپنے ناموں سے کنفیوز کر دیا عوام کو. ایک کام کیوں نہیں کرتے, مدرسہ کیوں نہیں کھول لیتے؟ بیٹا امام, باپ حافظ, دادا ضرور مفتی ہوں گے. چھوڑیے, ہٹائیے. اچھا اس فرد ہٹا دیں. ٹھیک. اچھا تو آپ حافظ کے بیٹے ہیں؟ جی ہاں, حافظ کے بیٹے ہیں. حافظ کو اس بات کا پتہ ہے؟ ہاں جی پتا ہے ان کو. حافظ کو کس نے بتایا؟ BBC پہ نیوز آیا تھا تو پتہ لگ گیا. آپ کو بتا رہے ہیں, آپ عجیب آدمی ہے, سمجھ نہیں آتا ہے آپ کو. یہاں تک بتائیں گے, وہیں سے بتائیں. مطلب BBC سے پہ نیوز آیا. ارے بھائی مذاق کیے, آپ بھی نا. اچھا مذاق کیے تھے. خیر, تو آپ عبد المنان کے بیٹے ہیں؟ ارے بھائی عبد المنان نہیں, حافظ. اوہ سوری, بھول گیا تھا. مطلب آپ حافظ کے بیٹے ہیں؟ ہاں جی. حافظ آپ کے گھر آتا تھا؟ جی آتا تھا. جاتا بھی تھا؟ ہاں جاتا بھی تھا. آتا جاتا رہتا تھا؟ ارے بھائی میرا گھر میں رہتا تھا. تو تم نے کہا نہیں کیوں رہتے ہو؟
अरे मेरा बाप है, उनसे क्या पूछना, पूछेंगे तो कूट नहीं देंगे। हो, कुटाए होते तो तुम सुधर गए होते। मतलब तुम हाफिज के बेटे हो। अब मुझे गुस्सा आ रहा है आपके बातों से, गुस्ताखाना बातों, अपने सवालों को बंद कीजिए। अब कबाब खाने के बाद गुस्सा आता है। ठीक। तो तुम हाफिज के बेटे हो। अरे भाई कितना बार बताया। जब तुमने हाफिज को पहली दफा कब देखा? पैदाइश के थोड़ी देर बाद देख लिया। कितनी देर बाद? थोड़ी देर बाद। तो तुम मुतमईन हो गए थे कि ये तुम्हारा बाप है? हाँ मैं मुतमईन था। मतलब तुम इतने शाणे पैदा हुए थे कि 2-3 घंटों में पता चल गया कि ये तुम्हारा बाप है? अरे हो गया, बताइए आगे वाला बात कीजिए आगे। तुमने हाफिज को सॉरी हाफिज तुमने हाफिज को पहली दफा कहाँ देखा? मैंने चरपाई पे बैठे हुए देखा। वो चारपाई में बैठे हुए क्या कर रहा था? बस यूं ही बैठे हुए थे। बेकार? बेकार। हो फिर समझे कि वो तुम्हारा बाप है। अब भी अजीब आदमी है, समझ नहीं आ रहा आपको एक बार बोलने से। हमको तो समझ में आ गया। तुम समझ रहे हो ना हाँ, कि तुम किसके बेटे हो? हाँ हम हाफिज के बेटे हैं। नहीं, तुम बेकार आदमी के बेटे हो। खैर, अब आप मुद्दे पे आ गए। अरे अभी मुद्दे पे कहाँ, अभी रुकिए। बोलने का मतलब ये है कि जब हाफिज की शादी हुई तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? अरे भाई उस वक्त मैं पैदा ही नहीं हुआ तो उम्र क्या थी, ये क्या बोलने वाली बात। इस सुस्ती की क्या वजह है? बिजी था, थोड़ा टाइम नहीं था। पैदा होने से पहले क्या करते थे आप? इधर उधर भटक रहे थे। तो किसी ने समझाया नहीं कि क्यों भटक रहे हो, कोई पैदा वैदा हो जाओ? आपके जैसा तो चालाक मिला नहीं कोई ने, तो समझा दिया होता। अच्छा, तालीम हासिल किया है आपने? जी हाँ की है मैंने। कॉमन मुस्लिम हो फिर भी तालीम हासिल किया है, माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। हाफिज ने तालीम दिलवाई? जी हाँ, अब्बू ने तालीम दिलवाई। हाफिज ने कभी आपको मारा, कभी हाथ लगाया? नहीं नहीं। क्यों? वो आपको किसी की अमानत समझता था जो खयानत नहीं करता? अरे भाई वो मेरा बाप है, मुझसे मोहब्बत करता था, वो मारेगा क्यों? मोहब्बत करता था? करता था, करता है, करते रहे। अच्छा खैर छोड़े, अब मुद्दे पे आते हैं। हाँ अब मुद्दे पे आइए। अच्छा इमाम भाई ये बताएं, आप एक कॉमन मुस्लिम है, राइट? यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ए मुस्लिम। ये सीना अंदर कर ले जरा। तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई कि हर एक मुसलमान पूरी उम्मत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समाज में आम मुसलमान के मामलात, मुआशरत, अखलाक और किरदार को ही देखकर दूसरे लोग इस्लाम को जज करते हैं, मगर आम मुसलमानों पे इल्जाम है कि आम मुसलमानों ने अपने फरीजे को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया, जिसकी वजह से गैरों को मौका मिला है कि पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करें। क्योंकि आप आज आम मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हाजिर हुए हैं, तो अदालत के आपके ऊपर कुछ इल्जामात हैं, क्या आप उन इल्जामात का सामना करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ हम तैयार हैं। अदालत, अवाम की अदालत में आम मुसलमानों पे यह पहला इल्जाम है कि दौरे हाजिर में मुसलमान बदअखलाक हो गए हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका अखलाक सबसे उम्दा है। इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए ताली एक हाथ से तो नहीं ना बजती है। ये ताली वाली आना बजाय लोग गलत फहमी का शिकार भी हो सकते हैं। ठीक है, हम इसका ख्याल रखेंगे। आज के दौर में भाई भाई का नहीं, दोस्त दोस्त का नहीं, हर कोई एक दूसरे के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। अच्छा, हर कोई एक दूसरे की हक तलफी में लगा हुआ है। तो अब आप बताइए कि हम अपने अखलाक को किस तरह उम्दा करें, किस तरह अच्छा करें, बताइए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अखलाक का सबसे आला मयार ही यही है कि जो रिश्ते तोड़े तुम उससे जुड़ो, जो तुम्हारा हक ले ले तुम उसका हक उसे अदा कर दो, जो ज्यादती करे तुम उसे माफ कर दो। अब हम चलते हैं अपने दूसरे इल्जाम की तरफ। अवाम की अदालत में आम मुसलमानों पे दूसरा इल्जाम यह है कि वो पड़ोसियों के हकूक को अदा नहीं करता। ऐसा वक्त अभी हमारे पास इतना वक्त कहाँ है, हम लोग के पास इतना वक्त कहाँ है कि हमारे पास तो इतना वक्त नहीं कि हम अपने खानदानों को, घर वालों को वक्त दे सके। अच्छा, हम और हाँ, ड्यूटी से घर और घर से ड्यूटी में ही टाइम चली जा रही है, तो हम अपने घर वालों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने पड़ोसियों को क्या वक्त दें? मेरे भाई
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि अगर आप दुनिया के चक्कर में रहोगे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला दुनिया आपके सामने फैला देगा और आप उसी में परेशान रहोगे, और अगर आप आखिरत की तैयारी में लगे रहोगे दुनिया को छोड़ के, तो अल्लाह ताला दुनिया से भी आपको मुस्तगना कर देगा और आखिरत में भी आपको आला मुकाम हासिल होगा। मेरे भाई, आपने असल में पड़ोसियों के हकूक की अहमियत को समझा ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस तो पढ़ी होगी शायद आपने, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जो खुद तो पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी जो उसके पहलू में रहता हो भूखा सो जाए। मेरे भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हकूक अदा करने की बहुत ज्यादा ताकीद की है कि अगर कोई भूखा है तो उस तक खाना पहुंचा दें, कोई बीमार है तो उसकी आदत करें और तीमारदारी की जाए, उसके हर खुशी और गम में उसका साथ दिया जाए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में बार बार उस तरह वसीयत करते रहे कि मुझे गुमान होने लगा शायद पड़ोसी को विरासत में शरीक न कर दिया जाए। देखिए, आज उम्मत जिन बहरान का शिकार है उसमें सबसे ज्यादा अहम यह है कि आज हमारे पास कोई कायद नहीं, और जिस कौम का कोई कायद नहीं होता उसकी मिसाल यूं है, भेड़ का झुंड बगैर किसी चरवाहे के, जिसे जब भी कोई भेड़िया चाहे उठा के ले जाए। ऐसे में हर मुसलमान की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो कायदाना सलाहियत का मुजाहरा करे, बजाय उसके लोगों ने अपने अपने सो कॉल्ड सियासी लीडर्स को चुनकर उसके पीछे चलने, उसका झंडा उठाने में फख्र महसूस कर रहे हैं। हालांकि हर कोई जानता होता है कि वो लीडर्स कितना करप्ट है, आपसे कम तालीम याफ्ता है, आपसे कम अहलियत का हामिल है। देखिए, आज के दौर में ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास, और ना ही हमारे पास कोई सियासी लीडर है। अपनी सियासी जमात है जो हम सबको इकट्ठा करके एक बनाए, एकजुट लाए, और बड़ों में भी हमें इसकी कोई फिक्र दिखाई नहीं देती है। खैर मेरे भाई, एक मुसलमान से अच्छा कोई रहनुमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान अपनी हिदायत अल्लाह की किताब से लेता है जो कि तमाम जहान का खालिक है, और मुसलमान इत्तबा करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो तमाम इंसानियत के लिए नबी और रसूल बना के भेजे गए। हमारा एक रोशन माजी भी रहा है कि जब मुसलमानों ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखा तो अल्लाह ने उन्हें अरब व अजम की हुक्मरानी नवाज दी। और ये ना कि मुसलमान के लिए बेहतर है कि मुसलमान कायद बने, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बेहतर है, क्योंकि मुसलमानों के पास खालिक का बनाया हुआ कानून है जो सबके साथ अदल और इंसाफ के तकाजे को पूरा कर सकता है। और मेरे भाई, इनकलाब वहाँ आते हैं जहाँ मजलूम मुत्तहिद हों, और जहाँ मजलूम अपने अपने पसंदीदा जालिम के लिए लड़े वहाँ इनकलाब नहीं कहत आते हैं। इनकलाब हमेशा नौजवान लाते हैं, लेकिन जब माशरे के नौजवान चमचागिरी की राह पर चल पड़े वहाँ इनकलाब नहीं गुलामी राज करती है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हमारा अगला इल्जाम मुसलमानों पे यह है, यानी आम मुसलमानों पे यह है कि जब इस्लाम हमारे बर्रे अजीम में दाखिल हुआ, बर्रे सगीर ना भाई, मैं इसे बर्रे अजीम समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े उलमा ने जन्म लिया, यहाँ बड़े बड़े मदारिस है, यहाँ अल्लाह ताला ने इस सरजमीन से बहुत काम लिया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी बहुत काम लेगा। इसीलिए मैं इसे बर्रे सगीर नहीं बर्रे अजीम समझता हूँ। तो जब इस्लाम हमारे बर्रे अजीम में दाखिल हुआ तो उस वक्त के गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों के अखलाक, मामलात, उनके किरदार और माशरती निज़ाम को देखकर उसे बेस्ट वे ऑफ लाइफ समझकर कबूल किया। मगर आज ये हाल है कि उस मुल्क की अक्सरियत मुसलमानों से बेजार हो चुकी है, ना वो उनके साथ रहना चाहती है, ना उनके साथ कारोबार करना चाहती हैं, और तो और वो उन्हें एंटी सोशल समझते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, कुछ नफरती तंजीमें हैं जो झूठे प्रोपेगेंडे के तहत हम सब मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आप भी जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं बोलने की। खैर आप सही कह रहे हैं, मगर ये सब अचानक नहीं हो गया। एक जमाना था जब लोग रेलवे स्टेशन पे उतरते थे और टैक्सी के मालिक को देखते थे कि ये दाढ़ी टोपी वाला है, तो उसी टैक्सी में बैठते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये अमानतदार है, ये झूठ नहीं बोलेगा और हमें शहर के झूठ मूठ का चक्कर नहीं लगाएगा। मगर और दुकानदार भी देखते थे कि वो दाढ़ी टोपी वाला हो, ताकि हम वहीं से अपने सामान खरीदें।
ताकि वो हमें सामान सही कीमत पे हम तक पहुंचाए। मगर आज हमारा हाल क्या है? हमारे लोग पहले हमारे घरों को छू कर कस्में खाते थे कि मियाँ साहब का घर है, हम कसम खा के बोल रहे हैं यहाँ, झूठ नहीं बोलेंगे। मगर आज ये हाल है हमारा कि ना हमारे घर महफूज, ना हमारे मस्जिद महफूज। शुक्रिया। अदालत ने दोनों फरीकों की बातें सुनी और अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आज मुसलमानों के जवाल का बड़ा सबब यह है कि उनका अखलाक, किरदार, मामलात और उनके माशरती निज़ाम बिगड़ चुके हैं, जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। अदालत ये चाहती है कि मुसलमान अपने सो कॉल्ड लीडर से लाताल्लुकी का इजहार करे और अपना कायद व रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाए और इन्हीं को अपना आइडियल और नमूना तस्लीम करें, ताकि आपके अखलाक, किरदार, माशरत, आपके मामलात 1400 साल पहले की तरह हो जाएं, जिनको देखकर एक गैर मुस्लिम इस्लाम की तरफ मतवज्जा हो। थैंक यू। अगले मुल्जिम जो इल्जामात का सामना करेंगे वो है करप्ट सियासतदान। लंबे लंबे जुलूस निकालकर मनोभारी हारों के नीचे दबकर चौराहों पर तवील तवील तकरीरों के खोखले अल्फाज बिखेर कर कौम के ये नाम निहाद रहनुमा सिर्फ अपने लिए ऐसा रास्ता बनाते हैं जो ऐश व इशरत की तरफ जाता है। मेरी मुराद हमारे मुल्क के करप्ट सियासतदान से है। सियासतदान हाजिर हो। सियासतदान हाजिर हो। आ रहा हूँ आओ। लोग हमरा पीछे पीछे काहे आता है जी? हम बाथरूम में जाता है, वो चलाता है, अभी इधर खड़ा रहो। बोलिए वकील साहब, इधर हाँ बोलिए। अरे गुलाब जाम शहर दवा जाम क्या है? मैं आ गया हूँ। इल्जाम क्या है बता। अरे मंत्री जी, इल्जाम नहीं इंतजाम है। शेख दिया में थोड़ी है कि इंतजाम होगा, कुटुंबों में आए तो इल्जाम नहीं होगा जी। जी मंत्री जी, आप कह रहे हो सही कह रहे हो। मंत्री जी, धूप न बारिश, छाता काहे लगवा के? ये लोग ये बहुत बदमाश है जी। इसको देखिए, जानते हैं कहाँ गए सिक्योरिटी? खा पी नहीं रहा है, मन घबरा रहा है। हम सोचे इसका शादी करा दे। अब लड़की वाला को हम बोल दिए कि आप लोग आइए, लड़का देख जाइए। अब आया उसका बाप, हम बोले लड़का देख लिए, बोल रहा है कि हम लोग तो लड़का देख लिया, अब इनको डॉक्टर को दिखाइए। अरे इतना कमजोर आप सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, ये आपको बचाएगा तो इसको कौन बचाएगा मार खाने? इन लोग को हमारा पार्टी बचाएगा। आप बोलिए। अच्छा मंत्री, क्या हुआ? आप लगे रहिए, ये सब हमारा चलते रहता। अरे मंत्री जी, ये अदालत है, क्या कर रहे हैं? सब हम जान रहे हैं, साफ करवा देंगे, कंजरवेंसी से आदमी भिजवा देंगे। काहे घबरा रहे? अच्छा मंत्री जी, हम चाहते हैं इल्जामात लगाने से पहले आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। बोलिए। तो वो शख्स कौन था जिसने आपको मशवरा दिया सियासत में आने का? अल्लाह उसको करवट करवट जन्नत जहन्नम का आग नसीब करे। असल में वकील साहब, हुआ ये कि हमारा एगो दोस्त था, उसका साथ हम गए मुंबई। अच्छा, मुंबई घूमे, बड़ा जोर का भूख लगा, सामने एगो बड़का 5 स्टार होटल, पैसा था 200 रुपया। हम लोग खा लिए भर पेट एकदम। अरे अब दोस्तों बोला का होगा रे? हम बोले चलो ना, का होता है, ये सियासत खेलेंगे लू। हम गए जब सामने, तो बोले कितना बिल हुआ जी? बोला 10,000। तो बोले हम तो देंगे नहीं, हमारा पास तो 200 रुपया है। वो हमको पुलिस से पकड़वा दिए। हम बाहर निकले, आप पुलिसों को 200 रुपया देकर छोड़। वाह, फिर वो समझ गया होगा कि आप पे कौम का बेड़ा गर्क कर देंगे। ज्यादा हमारा तो सवाल मत पूछिए। इससे पहले वो मुर्गी चोर का हमारा ऊपर केस था। वकीलों को 4 घंटा कोर्ट के बाहर हम मुर्गा बनाए थे। आपको भी बनाए का? अरे हम खैनी का बात कर रहे थे, नहीं काट रहे का? अदालत का याद रखा जाए। बोलिए, आप आगे बोलिए। बोलने दीजिएगा तब ना बोलेंगे। इससे पहले कि आप पे इल्जाम लगाऊं, मैं चाहता हूं कि ये आपकी आवाम आपके सामने बैठी हुई है और इलेक्शन भी सामने है,
तो अगर आप जीत के आए तो इन लोगों के लिए क्या क्या कीजिएगा? ये सब इल्जामों हमारा ऊपर कौन लगा रहा है? सब ओपोजिशन का चाल है, ये अपोजिशन का चाल नहीं, सब जनता का चाल है। जनता का सामान यही लोग सब, है। यस, अगर हम जीत के आ गए तो फिर हम जाएंगे नहीं। एक बात हम बता दे, और हमारा पास एक से एक योजना है। हम जनता का सुख चिंतक हूँ, जनता का नौकर हूँ। तो क्या योजना है? सड़क आपके खराब, टूटे फूटे, नल में पानी नहीं आता, लंबी लंबी कतारें होती हैं, औरतें उसी में झगड़ा कर रही हैं, पूरे मोहल्ले में बदमनी है। देखिए, अगर हम जीत गए तो सबका घर में हम 3-3 नल लगवाएंगे। 3 नल? एक में ठंडा पानी आएगा, ओह, जो ठंडा पानी से नहाएगा उसके नीचे बैठेगा। वाह मंत्री जी वाह। एक में गर्म पानी आएगा जी, जिसको गर्म पानी से नहाने का उसके नीचे बैठेगा। और तीसरा नल? तीसरा में पानी नहीं आएगा, जिसको नहीं नहाने का उसके नीचे बैठेगा। अरे मंत्री जी आप ऐसे हंस कर रहे, बार बार हम डर जा हम रहे हैं। बिहार के हैं। तो मंत्री जी आप सड़क के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सड़क जो पक्का बना हुआ है, देखिए, जो खराब है उसको तो हम बनाएंगे, और जो एकदम बना है उसको फिर खुदवाएंगे, फिर बनाएंगे। क्यों? पिछला ठेकेदार कमाया, हमारा नहीं कमाएगा। अल्लाह अकबर। तो आप पे बहुत सारे इल्जामात हैं। किसका? अरे ये अवाम का इल्जाम है। आवाम का बात आएगा तो थोड़ा हाथ हिलाएंगे। अरे ईमान, हाथ बंधवा दे, काहे से कर रहे हैं? पहला इल्जाम आपके ऊपर यह है कि आपने बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखे हैं लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों में परेशानी और बेचैनी पाई जा रही है। तो टैक्स लगेगा नहीं तो फंड में पैसा कैसे आएगा? हम तो ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगाएंगे। फालतू में सब ऑक्सीजन इतना ले रहा है। अरे ऑक्सीजन में टैक्स लगाएंगे, ऐसे ही पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, हाँ। लोग सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांस लेने में दिक्कत है तो मत लो। अरे तो मर नहीं जाएगा? अरे तो ऐसे भी कौन मर जी रहा है? अभी हम लोग खाने का बाद कॉल आ गया। रुकिए तनी, हम बता रहे हैं आवाम लोग को। मर्द लोग से हम यही कहेंगे कि जोरदार खटिए, हमारा पार्टी में खटिए, घर में एगो मयार बनाइए। और औरत लोग से एकदम डरने का जरूरत नहीं है, ज्यादा बजर बजर करे तो एकदम लगा दीजिए कंटा। अरे मंत्री ये सब कहाँ सिखा? फोन आ रहा है। अच्छा अच्छा। वो देखे, पार्टी का भी फोन हो सकता है ना, अभी इलेक्शन चल रहा है। हाँ हेलो, वाइफ हो जी? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, कपड़ा उपड़ा हम धो दिए हैं, बर्तन धो दिए हैं। हम आके घर भी साफ कर देंगे, आप फिल्म देख के आइए आराम से। हम फोटो में ना आए हैं जी, ये हमारा पे इल्जाम लगा है, तो टेंशन मत लो, हम जज से 500 रुपया में सेटिंग कर लिए। हाँ, अरे हम मंत्री में 500 रुपया ज्यादा नहीं है इनके लिए। हाँ हाँ, अरे हम मंत्री ना हूँ। हाँ, पहाड़ों में लड़ेगा और कांटों पे चलेगा, और हम 2 घंटा बाद आए तो चलेगा। ठीक है, आप तो मंत्री जी आप पे अगला इल्जाम ये है, इधर आओ। गड़वा बहुत आप पे अगला इल्जाम ये है जनता का कि आप जीत के आने से पहले तो बहुत गरीब थे, मगर दूसरे टर्म में ही आप इतने मालदार हो गए, एकड़ का एकड़ जमीन। कॉल आ रहा है वाइफ का। हेलो, हमारा ड्राइवर है, सच समझाइए। हाँ बोलिए। अरे गाड़ी का जगह नहीं मिल रहा, नो पार्किंग में पार्क कर दो। आइन मत देखो, आइन हम ही बनाते हैं, हम ही तोड़ते हैं। आइन कानून सब जनता के लिए, नेता लोग के लिए नहीं है। कौन है दरोगा? उठवा दो तो उसको, आप कर लीजिए। हाँ, अरे क्या हुआ दरोगा साहब? अरे हमारा गाड़ी अटका रहे हैं, हम ये अंचल का विधायक है, हमारे दिया नौकरियां कर रहे हैं, हमारा सामने बोल रहे हैं, आएंगे तो नोटिया छिनवा देंगे। चलिए रखिए, हमारे गाड़ी का ख्याल रखिए। हाँ वकील तो, अरे फारी हो गए, उठिए। नहीं कर लीजिए। कौन बुलाया है इसको? अब पूछे। हाँ पूछिए, आप लगे रही है अपना काम। तो पूछना ये था कि आप जब जीत के आए तो आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? देखिए असल में क्या है कि हमारा एक दोस्त है अमेरिका में, हम गए थे उसका पास, तो बड़ा शानदार बिल्डिंग बनाया था जी।
हम बोले कहाँ से आया ये बिल्डिंग हुआ? तो बोला सामने वो जो नदी दिख रहा है। बोले हाँ दिख रहा है। उसके ऊपर ब्रिज दिख रहा है। हाँ ब्रिज भी दिख रहा है, उसी का 30% से हम बनाए हैं। 2 साल बाद वो हमारा घरे आया, हमारा घर का जो ताम झाम देखा ना, बोला ये कहाँ से है? हम बोले सामने नदी दिख रहा है। बोला हाँ दिख रहा है, उसके ऊपर ब्रिज दिख रहा है। बोला नहीं, कहाँ से दिखेगा, उसका 100% से हम बनवाए हैं। इसीलिए कहते हैं इंडिया इज नॉट फॉर द बिगिनर्स। अच्छा मंत्री जी, पहले भी दंगे होते थे मगर हालात ऐसे न थे। आज हिंदू मुसलमान में जो दंगे, जात पात में दंगे, जबान के नाम पे दंगे, यहाँ तो के इलाकों के नाम पे भी दंगे हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अरे लड़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अरे मंत्री जी, पढ़ेगा इंडिया है वहां पे। अरे पढ़ेगा तो हमारा पीछे झंडवा लेके कौन ढोएगा जी? भाई हाँ मंत्री चलिए आप मंत्री जी, बोलिए। पिछले 10 साल का कार्यकाल आपका सामने है। आपने जो जो वादे किए थे कुछ पूरे नहीं किए, ना नौकरियां दी, ना महंगाई कम हुए। जनता आपसे खफा है। खिलाफ है मेरा, खिलाफ है। खिलाफ है तो होने तो जान थोड़ी है यार, ये सब धुआं है जी, आसमान थोड़ी है। मंत्री जी मगर एक बात याद रखिए, बोलिए। जो साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। मंत्री जी, एक नज़म हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पे सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। बाकी जज साहब अपना फैसला सुनाए। अदालत ने दोनों फरीकों की बातें सुनी और अदालत इस तरीके पर पहुंची है कि आवाम की इधर हमारे बारे में बोल रहा है। आवाम की तो ये राय थी कि आपको फांसी दे दी जाए और ये राय बजा भी है, लेकिन अदालत आपको एक और मौका देना चाहती है कि आप अपनी इस्लाह करें और तंबीह करती है कि आपको अल्लाह ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इसके मुतालिक आपकी पूछ होगी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की सीरत का मुताला करें और कोशिश करें कि आप लोगों के हुकूक अदा करें, वरना एक दिन आएगा कि क़यामत के दिन आप बादशाहों के बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़े किए जाएंगे और उनकी जिम्मेदारियों के मुतालिक आपकी पकड़ होगी और आप जहन्नम में औंधे मुंह डाल दिए जाओगे। अरे मंत्री जी जाइए, अब आपसे करप्ट आदमी आने वाला है। कौन है जी? यहूदी। यहूदी से क्या सवाल कीजिएगा, डायरेक्ट फांसी पर लटकाइए इन लोग को। एक बात हम बता दें। हाँ, देश को तो बर्बाद किया, हम लोग का स्टेज का सब सामान बर्बाद कर दिया। दोस्ती बनी रहे, अभी ले लीजिएगा। इसे वापस लीजिए, वापस नहीं आएगा, घर लेके चला जाएगा। करप्ट नेता है। छतवा हमको ना उड़ाएगा जी। हाँ